I have highlighted certain changes. I have highlighted certain changes in ITR forms. Many changes has been already incorporated in assessment year 20 and 21. There are certain changes specifically highlighted in this assessment year in form ITR 1 and 4. So common thing which I can tell you is basically the changes are pertaining to that new tax slab. If an assessee is opting for new tax regime, then certain benefits, certain deductions are not applicable to them. And if you are not opting for that new tax regime, then certain benefits and chapter 6 deductions are applicable for them. So certain in 1 and 4, there are only certain changes pertaining to this new tax regimes only. Apart from this, now dividends are taxable. So in schedule OS, certain disclosures regarding dividend has been added. And in schedule DI, this was there in last year's return also, that deduction attributable from investment done between 1st April 2020 up to 31st June 2020. So there was a provision where we used to invest, we were allowed to invest in chapter 6 deductions between 1st April 2020 to 31st June 2020. Because due to lockdown, if you have donated something or you have invested, you have paid Mediclaim, LIC, whatever, which was applicable for financial year 1920, but you delayed and you invested in between 1st April 2020 to 31st June 2020. So ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि लास्ट ईयर भी हमने उसको चैप्टर 6 के डिडक्शंस में क्लेम कर लिया है और इस बार भी हम लोग का ये फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है 2021, तो यहाँ पे भी हम क्लेम कर रहे हैं. So which is practically not possible. You will get the IT notice if you are doing this. So एक ये check point हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि investment between 1st April 2020 to 30th June 2020 pertaining to last financial year, just as 1920, should not be included in this return, and it should be specifically disclosed in ITR 1 and ITR 4. So applicability is ITR 1 specifically not allowed if 26 years may there is a TDS deduction under section 194N, or if you have deferment on ESOP. Schedule OS have some changes pertaining to dividend. पहले dividend exempt था, now dividend is taxable in hands of recipient. So OS schedule में there are specific disclosures pertaining to dividend. Then schedule DI investments double ना हो जाए, double deduction ना ले ले, ये आप ध्यान में रखिए. Then certain changes in ITR 2. ITR 2 में भी न्यू रेजिम का ऑप्शन अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो उससे पर्टेनिंग चेंजेस है. कैपिटल गेन हेड में चेंजेस है. पहले वेरिएंस 1.55% वेरिएंस अलाउड था 50C के केस में, अब 10% वेरिएंस अलाउड है. सो वो छोटा सा चेंज हुआ है. एंड अदर सोर्सेज में भी डिविडेंड से पर्टेनिंग डिस्क्लोज करना है, जो ITR ऑलमोस्ट सारे ITRs में ऐड हुआ है. पहले एग्जेम्प्ट में जाता था, अब हमको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना है. एंड द शेड्यूल SI इज ओमिटेड दिस ईयर इन ITR 2. ESOP से related bifurcation has been increased in ITR 2. That's the reason it has been specifically told कि अगर ESOP से pertaining कुछ भी आपका disclosure है, then ITR 1 is not applicable. Then schedule TDS specifically अगर 194N से pertaining कुछ भी है तो उसके लिए specific disclosures has been added in ITR 2. So this is the dividend income disclosure shown in schedule OS. Dividend other than 222E you have to show here and it would be taxable. Then there are certain changes in ITR 7. ITR 7 में भी other sources में कुछ specific changes है pertaining to new tax regime. SI schedule यहाँ से भी omit हो गया है and TDS में pertaining to 194 इसमें भी changes आए हैं. ITR 3 में भी, ITR 3 में पार्ट ए में जनरल इंफॉर्मेशन में ही
in the very beginning you have to specify that which tax regime are you going for. Are you going for a new tax regime or are you opting for old tax regime only? So specifically that has been added. I think this was added in last year return also. Then schedule 5A, information of spouse governed under Portuguese civil code. अगर पोर्टुगीज सिविल कोड में है आपकी कोई स्पाउस तो उसका स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स आया है. नाउ शेड्यूल डीपीएम, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. अगर आप न्यू स्कीम ऑप्ट करते हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो आपको स्पेसिफिक चेंज फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हुआ है. कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस शेड्यूल में भी इफ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग न्यू स्कीम तो आपको लॉसेस अलाउड नहीं है, तो यू हैव टू स्पेसिफिकली शो देयर कि यू आर टेकिंग दिस न्यू स्कीम एंड दिस लॉस कांट बी कैरी फॉरवर्ड. अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के भी मतलब ऑलमोस्ट जो सारे आईटीआर में चेंजेस है वो न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम में बाइफर्केशन की वजह से ही चेंजेस आए. बाकी ऑलमोस्ट सारे चेंजेस फाइनेंशियल ईयर 1920 में इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं. Now in ITR 6 specifically that DDT is removed because now dividend is taxable in hands of shareholders. So pertaining to dividend वहाँ पे change आया है ITR 6 में. 80GGAA में donation in case of companies donation में date specify करनी है, पहले date specify करना was not mandatory. And बाकी भी changes जो pertaining to 194N चेंजेस है वो सारे फॉर्म्स में इनकॉर्पोरेट हुए हैं. न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम में डिफरेंसेस है वो सारे आईटीआर फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हुए हैं. सो these were some of the changes in ITR for this assessment year 21-22. So the mistake area could be dividend जो हम पहले exempt में डालते थे, we have to show it as a taxable income. And if you have interest income TDS deducted under 194N or ESOP, specifically you have to show disclosures pertaining to that. So this was the applicability of ITR form and certain changes made in ITR form for the specific assessment year. Now this is change in tax audit report under for assessment year 21 and 22. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स में भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, उसमें भी वही है. फर्स्ट तो एप्लीकेबिलिटी टैक्स ऑडिट में बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि स्लैब्स इंक्रीज हो गए पहले से. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्स रेजिम में बाइफर्केशन से रिलेटेड यहाँ पे भी डिस्क्लोजर्स टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डालने हैं. बाकी ज्यादा इसमें भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी ये ईयर में चेंजेस नहीं है. सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट. सो व्हाट आर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट इन केस person is engaged in business. So पहले सीधा कैलकुलेशन था 1 करोड़ के ऊपर जा रहे हो या 2 करोड़ के ऊपर जा रहे हो तो 4480 एप्लीकेबल हो जाएगा. Now the slabs has been bifurcated more than 10 crores, between 2 to 10 crores, 1 to 2 crores. How? This is the simple tabular form showing कि आपको tax audit कब applicable होता है. If the turnover limit for the previous year is above 10 crores, 10 करोड़ के ऊपर है मैंडेटरी टैक्स ऑडिट. कुछ नहीं देखना है, कैश रिसीट्स नहीं, कैश पेमेंट्स नहीं, परसेंट कितना शो कर रहे हो. मैं 6% शो कर रही हूँ, 8% प्रॉफिट शो कर रही हूँ, नथिंग डूइंग. इफ योर टर्नओवर इज अबव 10 करोड़ कंपल्सरीली टैक्स ऑडिट. इफ द assessee's turnover is more than 2 crores but up to 10 crores, मतलब the turnover is between 2 to 10 crores, then in such case we have to check whether cash receipts are less than 5 crores of the turnover. आपका जितना भी टर्नओवर है उसका 5% से ज्यादा कैश रिसीट तो नहीं है, वो आपको चेक करना है. अगर कैश रिसीट इज लेस देन 5%, टैक्स ऑडिट मैंडेटरी नहीं है. अगर कैश पेमेंट्स आर लेस देन 5%, then also tax audits are not mandatory. Then another situation where the turnover is more than 2 crores but up to 10 crores. Here also that 6%, 8% limit is not applicable because presumptive is not applicable above 2 CR. So whether cash receipt is less than 5 CR, no. मतलब आपका cash receipt turnover का 5% से ऊपर है या तो cash payment 5% से ऊपर है तो आपको मैंडेटरीली टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा. मतलब अगर आप 2 करोड़ के ऊपर चले गए हो तो आपको देखना पड़ेगा कि सेल पार्ट में या तो रेवेन्यू टर्नओवर पार्ट में 5% से ऊपर रिसीट्स कैश में हुए हैं क्या. यस,
मैंडेटरीली टैक्स ऑडिट. कैश पेमेंट्स हुए 5% से ऊपर, यस मैंडेटरीली टैक्स ऑडिट. अगर 5% से लेस है तो टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल. देन अनदर सिचुएशन, more than 1 crore turnover but up to 2 crores. अब आपका टर्नओवर 1 CR से ऊपर चला गया है बट 2 CR से नीचे है. So now you can opt for, you have an option to opt for presumptive income, right? So if you are showing turnover का 6% प्रॉफिट और अगर कैश में टर्नओवर है तो 8% प्रॉफिट, सो आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी नहीं. इन दिस केस टैक्स ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी. अभी आपने देखा होगा अगर 2 करोड़ के नीचे आ गए तो ये आपको चेक ही नहीं करना है. 5% कैश रिसीट है, 5% कैश पेमेंट है, नथिंग. यू हैव ऑप्शन टू गो फॉर अ प्रिजम्पटिव. अगर आप 6% शो कर रहे हो या 8% शो कर रहे हो देन टैक्स ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी. बट if in any case you are showing your income which is less than 6% of turnover or less than 8% of turnover, then mandatorily you have to go for tax audit. If your turnover is less than 1 crores and if you are showing it on presumptive basis, that is more than 8 to 6% income, then tax audit is not applicable. Less than 1 crore, if you are showing 6 to 8% of profit, then if you are showing profit less than 8 or 6%, then compulsorily tax audit. मतलब in any case अगर आप 6% 8% से नीचे शो करते हो तो आपको टैक्स ऑडिट कंपलसरी करवाना पड़ेगा. अगर आपका टर्नओवर 2 CR से ऊपर क्रॉस होता है तो this presumptive is not applicable to you. Then you have to see these 3 turnover limits for tax audit applicability. So in any case, if company is having or any associate is having turnover more than 10 crores, nothing doing compulsory tax audit. If it's between 2 to 10 crore, then you have to check this cash receipts and cash payments. If they are below 5%, then tax audit is not applicable. If it is above 5%, then compulsorily tax audit is applicable. So there are heavy penalty clauses if tax audit is not done when they are applicable. So the understanding this turnover limit for tax audit is really important. Now, in case of profession, if the turnover is above 50 lakhs, then tax audit is compulsorily applicable. If turnover is less than, that is gross receipt is less than 50 lakhs, then you have to show 50%, at least 50% income under 44 ABA. If you are not showing 50%, then tax audit is compulsory. If you are showing 50% and above, tax audit is not compulsory. So in case of profession, this is crystal clear case, no confusion, only slab is 50 lakhs rupees. But in case of business associate, we have to go through all the situation and make sure if tax audit is applicable to associate, we have to compulsorily file tax audit report, else there are huge penalty provisions for this. Now there are certain revisions done in tax audit report for assessment year 21 and 22. So basically पहले कैसा होता था, जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हम लोग फाइल करते थे उसके साथ ही हम ITR का फाइलिंग भी कर देते थे. So there is a section 43B जहाँ पे हम लोग एक्सपेंसेस डिसअलाउ करते थे इन केस अगर हम लोग ने उस पर TDS या कुछ टैक्स पेमेंट नहीं किया अप टू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न. सो दिस वाज द प्लेन केस जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ITR दोनों साथ में हम लोग फाइल करते थे. बट अभी कैसा होता है, हम लोग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पहले फाइल करते हैं और उसके ITR बाद में फाइल करते हैं. यू कैन सी यहाँ पे ड्यू डेट्स लास्ट ईयर भी सेम सिनेरियो था, ये साल भी सेम सिनेरियो है कि ड्यू डेट्स में चेंजेस आए. हम लोग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं 15 जनवरी और जो टैक्स ऑडिट में एप्लीकेबल, जिसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है उसके ITR हम लोग सपोज फाइल कर रहे हैं 15 फरवरी. मतलब एक मंथ का गैप हो गया आफ्टर फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स. सो 43B का डिसअलाउंसेस हम कैसे करेंगे. सपोज हमने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डाल दिया कि इस पे टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है. सपोज 43B का हम लोग ने डिसअलाउंस कर दिया
और फिर क्यों 43B का डिसअलाउंस किया, क्योंकि अप टू डेट ऑफ फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उसका TDS का पेमेंट या कोई भी टैक्सेस का पेमेंट नहीं हुआ था, तो हम लोग ने 43B में डिसअलाउ कर दिया। बट प्रोविजन क्या बोलता है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के डेट तक फाइलिंग नहीं करना है। कौन से ड्यू डेट तक फाइल करना है, अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, what amendment they have brought in this rule 6G is कि आपका ऑडिट रिपोर्ट तक अगर 43B कंप्लाई नहीं हुआ है और आपने वेट किया है रिटर्न फाइलिंग तक, आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में एक्सपेंसेस डिसअलाउ नहीं किया है, तो आपके पास ऑप्शन है, यू कैन रिवाइज योर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सेइंग कि टिल 15 February assessee has not paid TDS on specific expenditure. That's the reason we are revising the tax audit report. So ये प्रोविजन स्पेसिफिकली रूल 6G में पहले नहीं दिया था, अभी रिविजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रूल 6G में इंट्रोड्यूस किया है। क्यों इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स और इनकम टैक्स के रिटर्न सेम टाइम पे फाइल किए जाते थे, अभी लास्ट असेसमेंट ईयर से के डेट्स चेंज हो गए, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पहले फाइल करते हैं और इनकम टैक्स के रिटर्न बाद में फाइल करते हैं। सो हम लोग के पास ये ऑप्शन नहीं है, हम लोग ने डाल दिया कि हम लोग ने 43B में एक्सपेंडिचर अलाउ कर दिया है, but up to filing of return, if assessee is not paying the TDS or taxes on that 43B, then we have option to revise our tax audit report and file as per rule 6G. So this is the bare act, this is the bare notification जो उन लोग ने हमको दिया है, this has been incorporated in this 3CD forms also. So under 44AB read with rule 6G, we have option to revise our audit report pertaining to disallowance under section 40 or section 43B. So this was the important amendment given in tax audit reports. Apart from this, अगर tax audit reports में भी आप देखेंगे और ITR में भी आपने common चीज देखा ही होगा, maximum differences या incorporation जो new हुआ है forms में, that is due to old regime of tax and new regime of tax. यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ है, स्पेसिफिक क्लॉज में चेंजेस हुआ है, जहाँ पे हमने न्यू रेजिम ऑप्ट किया है तो स्पेसिफिक डिडक्शंस आर नॉट अलाउड, ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस आर नॉट अलाउड, तो बस उसके फॉर्म्स में बाइफिकेशंस किए हैं, ऑडिट रिपोर्ट में भी बाकी कोई एडिशनल डिस्क्लोजर्स नहीं है। सो इन क्लॉज 8A if we are opting for new scheme of taxation, तो हम लोग को यहाँ पे स्पेसिफिकली शो करना है that under which section we are opting for new tax regime. Clause 18 में भी same issue है, for exercising option under 115 BAC and BAD, ये भी new tax regime है applicable from Finance Act 2020. So यहाँ पे भी हमको वो ही शो करना है, additional depreciation is not allowed under new tax regime. So there is a specific subclause added in the audit report saying that adjustment made to return down value under section 115 BAC and BAD, अगर न्यू regime आप ऑप्ट कर रहे हो तो you have to disclose under the specific head of WDV of asset. Clause 18 में आपको ये specific change करना पड़ेगा। Similarly, clause 32 में भी changes आए brought forward losses में, if you are opting for new tax regime, then यहाँ पे एक clause add हुआ है showing that all the losses which are not allowed under section 115 BBA, BAC और BAD, तो आपको specifically show करना है कि carry forward losses हम लोग जो carry forward नहीं कर रहे हैं या brought forward losses जो future में carry forward नहीं कर रहे हैं because of opting new tax regime, तो यहाँ पे ये एक clause 32 में columns add हुए हैं. So these were the basic changes done in ITR forms and 3CD reports, tax audit reports. So one of the important, very important amendment in this tax audit report is we have option to revise our tax audit report but pertaining to disallowance under section 40 and 43B. So पहले ये option नहीं था, बाकी सारे चेंजेस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्स की वजह से ही आए, कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स पर्टेनिंग टू डेप्रिसिएशन,
WDV ऑफ एसेट्स ऑन ड्रॉप फॉरवर्ड लॉसेस। और इनकम टैक्स रिटर्न में भी अगर आप देखेंगे तो चेंजेस इसी के पर्टेनिंग आए हैं। जो ओल्ड रिजीम अगर आप टैक्स ले रहे हो, स्कीम ले रहे हो, न्यू रिजीम ऑफ टैक्स स्कीम ले रहे हो, तो क्या चेंजेस है उसी की वजह से डिफरेंसेस है। बाकी मेजर कोई एडिशंस फॉर्म में नहीं हुए हैं। बाकी जो भी चेंजेस थे वो फाइनेंशियल ईयर 1920 के ITR फॉर्म्स और 3CD में इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। Apart from this, very important thing was applicability of this tax audit. So this is very important कि client को tax audit applicable कब होता है, specifically in case of business associates, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। Professional person है, so things are sorted। 50 lakhs का flat slab है turnover। Now पहले हम लोग यूज करते थे फॉर ऑडिटिंग ERP, टैली ERP 9 अगर टैली से ऑडिट होता था तो। अभी टैली प्राइम 2.4 इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें ज्यादा फीचर्स हम लोग यूज कर सकते हैं pertaining to टैली, which can definitely save our time while performing the audit. So अगर मैं पूरे फीचर्स डिस्कस करूंगी ऑफ टैली प्राइम ऑडिट फीचर तो it would take more than 24 hours, इतने फीचर्स है। So what I did is कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो हम लोग को टैक्स ऑडिट के टाइम पे या कंपनी ऑडिट के टाइम पे काम आएंगे which I would like to discuss. So first of all आपको टैली में आपका ऑडिट फंक्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा जैसे हम लोग ERP में भी करते थे। So you have to enable this audit function in Tally Prime for your client. ये आप फंक्शन ऑप्ट करने के बाद ही टैली फीचर यूज कर पाएंगे। So this is the W company. So how will you activate this audit feature of Tally is you have to go to your company option or Alt K. You have to alter the company details. You have to go to the security control and say yes. Once you do this yes, तो आपको ID और password पूछेगा and आपको बोलेगा do you want to enable audit feature. If you do yes, तो ही आप audit feature use कर पाओगे, वरना आप audit feature Tally का use नहीं कर पाओगे। So आपको पहले यहाँ पे गेटवे में आके ये ऑडिट फीचर आपके क्लाइंट्स का इनेबल करना पड़ेगा तो ही आप टैली प्राइम में ऑडिट फीचर यूज कर पाओगे। बाकी बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए हैं स्पेसिफिकली जो मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। सो बेसिक फीचर्स आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस टाइम बट स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फीचर्स आई विल ट्राई टू डिस्कस। अब जैसे ही आप ये ऑडिट का फीचर एक्टिवेट करते हैं आपके टैली में, in more display more reports you will get this analysis and verification का option. Go to this analysis and verification option. You have two options, voucher verification and data analysis. If you go to data analysis option, you have so many options. ये पहले ERP में भी थे but अब बहुत ज़्यादा shorter way में और बहुत ज़्यादा user friendly way में यहाँ पे incorporate हुआ है। Specifically this verification of charts of accounts, you can specifically see कि कौन से ट्रांजेक्शन्स है जो अकाउंट से ड्यूरिंग द ईयर स्क्वायर्ड ऑफ हुए हैं, कौन से ऐसे अकाउंट्स है लेजर्स है जो यूज ही नहीं हुए ड्यूरिंग द ईयर और ड्यूरिंग द ईयर स्पेसिफिकली यूज हुए हैं। सो दीज आर दी फीचर्स जो हम यूज कर सकते हैं। इसमें से कुछ कुछ फीचर्स जो स्पेसिफिकली हमको सारे ऑडिट्स में काम आएंगे दैट आई हैव ट्राइड टू डिस्कस। Then another feature is this voucher verification. Voucher verification में भी sampling कैसे करना है, कितने voucher का sampling करना है, कैसे sampling करना है, सब कुछ यहाँ पे option है। I will try to discuss this also. So first is view data analysis report in Tally Prime. सीधा सीधा गेटवे ऑफ टैली से आप जा सकते हैं या तो फिर ये गो टू ऑप्शन यूज करके आप वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। आपको डायरेक्टली यहाँ से भी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। Chart of accounts, stock items, whatever. This is the shortcut given by them, which can save a lot of time. So data analysis में first आपको बहुत सारी options दिए हैं। आप इसमें भी कुछ specific alterations कर सकते हैं through this master configuration. Suppose I want to do some sampling
with my vouchers. सपोज मुझे पेमेंट्स चेक करना है, मुझे पेमेंट्स कैसे चेक करना है, मुझे पेमेंट स्पेसिफिक पीरियड के चेक करना है या फिर मुझे स्पेसिफिक अमाउंट रेंज के चेक करना है. सपोज मुझे पेमेंट्स ओनली 50,000 के ऊपर चेक करना है अप टू 50 lakhs या तो व्हाटएवर 5 lakhs मिनिमम अमाउंट अप टू 50 lakhs, तो मैं रेंज सेट करके रख सकती हूँ. मुझे परचेजेस स्पेसिफिक पीरियड के ही चेक करना है. आई डोंट वांट टू चेक ऑल दी परचेजेस, मुझे सिर्फ लास्ट क्वार्टर के परचेजेस चेक करना है. तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया सैम्पलिंग में, परचेज मुझे सिर्फ लास्ट क्वार्टर के चेक करना है. देन आई हैव टू चेक सेल्स की, मुझे सारा 100% चेकिंग रखना है. ऑल वाउचर्स चेकिंग कर दिया मैंने. स्टॉक जर्नल में भी ऑल वाउचर्स, मुझे स्टॉक के भी सारे चेक करना है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे ऑडिट के पैरामीटर्स सेट कर दिए. क्रेडिट नोट्स, मुझे क्रेडिट नोट्स क्या चेक करना है, मुझे क्रेडिट नोट्स ओनली स्पेसिफिक वाउचर्स चेक करने हैं. तो स्पेसिफिक वाउचर्स, आप यहाँ पे स्पेसिफिक वाउचर्स नंबर्स डाल सकते हो. मुझे इसमें अमाउंट रेंज चेक करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000 to 50,000 रुपीज, 5 lakhs रुपीज, व्हाटएवर रेंज सेट कर सकती हो. सो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वाउचर्स में मैंने क्या किया, मैंने सैम्पलिंग कर दिया. अगर मुझे ये नहीं करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रैंडम सैम्पलिंग का. I'll go to this random sampling option. So now this random sampling option is showing me कि मेरे पूरे ईयर में ये क्लाइंट में टोटल 615 वाउचर्स है. So suppose 615 वाउचर्स है, मुझे इसमें से सपोज 350 वाउचर्स चेक करना है. यहाँ पे ऑप्शन पूछेंगे कि आपको क्या करना है, 350 वाउचर्स चेक करना है. यस, 350 वाउचर्स चेक करना है. अगर मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी तो ये 615 वाउचर्स में से 350 रैंडम वाउचर्स सिलेक्ट हो जाएंगे जो मैं वाउचिंग करवा सकती हूँ. अगर मुझे ऐसा नहीं करना है, सपोज मुझे 75% चेकिंग रखनी है, मैंने यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट कर दिया कि मुझे 75% चेकिंग करनी है. यस, तो अब मेरे रैंडमली 75% कोई भी वाउचर्स अलग हो जाएंगे जिसके मैं चेकिंग कर सकती हूँ. सो दिस रैंडम सैम्पलिंग ऑप्शन आई फाउंड इट रियली नाइस कि मुझे क्या करना है. और अगर रैंडम सैम्पलिंग नहीं करना है, मुझे स्पेसिफिकली कोई भी आइटम में मेरे हिसाब से करना है चेकिंग. सपोज परचेज में मैंने लास्ट क्वार्टर का चेकिंग रखा है, मुझे पेमेंट्स में स्पेसिफिक अमाउंट्स का चेकिंग रखना है, तो मैं वैसे भी मेरा ऑडिट प्लान कर सकती हूँ. So this sampling method is very nice, जहाँ पे मुझे पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स कितने हैं, टोटल वाउचर्स मुझे चेकिंग कितना करना है. अगर मुझे 100% चेकिंग करना, अभी ये सब पैरामीटर्स सेट करने के बाद इफ आई फील कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, आई विल रिस्टोर दिस टू डिफॉल्ट. सारे क्राइटेरियाज हट गए. So whatever criterias I set for this vouching purpose, या तो random sampling I can do, along with random sampling if I have to do some specific checking, तो मैं यहाँ पे वो sampling method apply कर सकती हूँ. जैसे ही मैं sampling method apply करूँगी and I start my voucher verification through Tally or whatever, तो मुझे ये सारे samples separately ही मिल जाएंगे. I'll show you कैसे मिलेंगे. तो डेटा एनालिसिस में हम लोग ने देखा काफ़ी ऑप्शन है हम लोग के पास. चार्ट ऑफ अकाउंट वेरिफिकेशन है, स्टॉक आइटम, बैलेंसेस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रिपीटेड ट्रांजैक्शन, एन नंबर ऑफ थिंग्स वी कैन चेक थ्रू दिस. वाउचर्स में हम लोग ने स्पेसिफिकली देखा सैम्पलिंग मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं. वी कैन सेट अ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज, क्या क्राइटेरियाज हमको सेट करने हैं हम लोग के ऑडिट के लिए, मैं वो करके सेव करके रख सकती हूँ. जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट करके रखे थे डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स के लिए कोई अमाउंट स्पेसिफिकली सेट करके रखा था. सो वो इसमें सेव करके रखेगा और वो सैम्पलिंग वाउचर ऑटोमेटिक टैली स्प्लिट करेगा. नाउ मैंने जैसे ही सैम्पलिंग करके रखा है तो मुझे वाउचर्स रिपोर्ट में कैसे दिखेगा, आई शो यू. First I'm doing some sampling here. Credit note. Last quarter, first quarter. Still I have to check some vouchers. Purchase
I'm checking only above 5 lakhs up to 50 lakhs. Okay. Payments also I'm checking about, suppose 50,000 lakhs. I have set some parameters for audit sampling. Now I will go to voucher verification. Look, अब वाउचर वेरिफिकेशन में पूरा गेटवे पे जाके वापस ये फीचर तक आ सकती हूँ और इधर आई कैन यूज डायरेक्टली दिस गो टू फीचर. अब यहाँ पे जो मैंने सैम्पलिंग करके रखे थे स्पेसिफिकली डिफाइंड सैम्पलिंग था, मुझे कोई स्पेसिफिक वाउचर्स ही चेक करने थे, तो यहाँ पे अपने आप सैम्पलिंग हो गया वो वाउचर्स का. मैंने जाके देखा अब मुझे कैसे वाउचर्स कौन से चेक करना है, तो अमाउंट रेंज की वजह से जो मुझे चेक करने थे पेमेंट और परचेज, मुझे सारे वाउचर्स यहाँ पे दिख जाएंगे. आई कैन चेक ऑल दिस वाउचर्स स्पेसिफिकली. वेरिएंस के साथ आई कैन गो एंड चेक. परचेज में भी वो सारे सैंपल हो गए. मैंने परचेज में अमाउंट पैरामीटर्स डाल के रखे थे अबव 5 लाख अप टू 50 लाख. तो सिर्फ ये 2 ट्रांजेक्शन्स मुझे मिले हैं जो मेरे पैरामीटर्स में बैठते हैं. तो अगर सपोज ये मैंने चेक कर लिया वेरीफाइड, आई हैव अकाउंटेड दिस एज वेरीफाइड, और दूसरा मुझे जो अमाउंट चेक करना था, suppose I have to take external confirmation from party, I have marked this as external confirmation. So यहाँ पे सैंपल मैंने कितने किए हैं उसमें से मेरे कितना परसेंट वेरिफिकेशन हुआ है वो भी मैं यहाँ पे सेव करके अकाउंट करके रख सकती हूँ. अभी मैंने परचेज का भी कोई स्पेसिफिक पैरामीटर सेट करके रखा था 50,000 से के ऊपर अप टू 50 लाख रुपीज. सो दीस आर दी ट्रांजेक्शंस पूरे पीरियड में जो मेरे पैरामीटर में सेट होते हैं. तो सपोज मेरे पैरामीटर्स में सेट हुआ, मैंने एक एक अगर वेरीफाइड किया है तो आई हैव टू मार्क इट एज वेरीफाइड. इफ आई हैव नॉट वेरीफाइड, आई हैव डाउट इन दिस ट्रांजैक्शन, आई हैव टू टेक इंटरनल ऑब्जर्वेशन, आई कैन नोट माय इंटरनल ऑब्जर्वेशन हियर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई कैन सेव एवरीथिंग हियर. मुझे फ्यूचर में अगर मैं ये ओपन कर रही हूँ तो मेरा वेरीफाइड नॉन वेरीफाइड जो भी है सब प्रॉपर्ली सेव हो जाना चाहिए. So this is the sampling option which would be very useful while performing the audit. अब ये एक डमी कंपनी है, छोटा कंपनी है, इसलिए यहाँ पे वाउचर्स और ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं है. बट अगर बड़ा कंपनी होता है तो दिस वाउचर एंड रैंडम सैम्पलिंग इज लाइक वेरी यूजफुल व्हाइल ऑडिटिंग. अब रिलेटेड पार्टी भी ट्रांजैक्शन, सपोज मैंने कोई एबीसीडी पर्सन है, डेटर है, उसको रिलेटेड पार्टी सेट करके रखा है यहाँ पे, मैं दूसरी पार्टीज को भी क्लासिफाई कर सकती हूँ एज अ रिलेटेड पार्टी. सो मुझे पूरा रिलेटेड पार्टी का रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा जो मैं मेरा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में सीधा का सीधा इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. दिस वाज ऑडिट सैम्पलिंग, definitely very useful while auditing. अब ऑडिट सैम्पलिंग में ऑल्सो आई कैन फर्दर कॉन्फ़िगर इट. मैंने ऑडिट सैम्पलिंग किया क्रेडिट नोट्स का, अब यहाँ पे भी मैं फर्दर शो कर सकती हूँ कि मैंने सैम्पलिंग कैसे किया था. मुझे बैक जाके देखना, मुझे याद नहीं है मैंने कैसे सैम्पलिंग किया था. सारे टाइप के वाउचर शो करना, तो यहाँ पे मेरे को शो कर देगा कि क्रेडिट नोट्स में मैंने 1 अप्रैल 20 से 30 सितंबर तक का सैम्पलिंग किया था, तो टोटल वाउचर में सिंगल वाउचर सैंपल हुआ था. फिर सपोज पेमेंट में मैंने लिमिट सेट किया 50 to 50 लाख, तो 139 टोटल वाउचर्स में से 37 वाउचर्स सैंपल हुए थे. अब ये 37 वाउचर्स में से सिर्फ मैंने एक वाउचर वेरीफाई किया है. सो यहाँ पे आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा शोइंग कि हम लोग ने सैम्पलिंग कैसे किया था, उसमें से वेरीफाइड कितना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कितना लेना है. सेल के मैंने सारे वाउचर्स चेक करने हैं, तो 221 में से पूरे सैम्पलिंग हुआ है. स्टॉक जेवी, अब स्टॉक जेवी में यूजुअली मिस्टेक्स होती है, सो आई विल प्रेफर कि स्टॉक जेवी में पूरा चेक करो. तो स्टॉक जेवी मेरे को सारा चेक करना है, तो उसमें भी आई कैन पुट अ कमेंट कि मुझे क्या करना है, वेरीफाइड है, अगर वेरीफाइड नहीं है कुछ इंटरनल ऑब्जर्वेशन डालना है, आई कैन पुट इंटरनल ऑब्जर्वेशन इन दिस. सो बाय दिस वे हम लोग को पता चलेगा कि कितना पूरा वाउचर्स है हम लोग के टैली में,
उसमें से हम लोग सैम्पलिंग पैरामीटर्स दे सकते हैं। अगर मुझे सैम्पलिंग पैरामीटर्स नहीं देने हैं तो फिर मैं रैंडम सैम्पलिंग भी कर सकती हूँ। तो इसमें से कोई भी रैंडम वाउचर्स परसेंट के बेसिस पे और अमाउंट के बेसिस पे स्प्लिट हो जाएंगे। So this is really useful to us while auditing. Apart from this, स्टॉक आइटम्स हमेशा हम लोग चेक करते हैं, स्टॉक में कुछ ना कुछ इशू होता ही है। फर्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट्स हमने देखा, वेरिफिकेशन में मुझे सारे लेजर्स दिख गए कि कौन से लेजर्स है जो मैंने सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर शो किए। अगर मुझे ये भी देखना है लेजर वाइज तो मैं एक एक लेजर वाइज यहीं से जाके चेक कर सकती हूँ। मुझे ऐसे ट्रांजैक्शन देखना है जो लेजर्स ड्यूरिंग द ईयर यूज हुए ही नहीं है। अब यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का एनालिसिस सेव करके रखा था, क्योंकि यूजुअली आई चेक दिस वे ओनली। तो ये ऐसे ही सेव किया हुआ मुझे मिलेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। आपको सेट करना है, आप ऐसे ही सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मुझे स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं था, सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन हुआ है। इसमें भी मैंने क्या वेरीफाई किया है, क्या होल्ड पे रखा है, आई कैन पुट माई कमेंट एंड कीप इट। अब यहाँ पे भी टाइप ऑफ लेजर मुझे सिर्फ एक्सेप्शन रिपोर्ट्स मिल रहे हैं। मुझे एक्सेप्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसे चाहिए जो यूज ओनली इन करंट ईयर है, ऑल आइटम। तो मैं उसको ऐसे भी सेट कर सकती हूँ। ये सारे ऐसे लेजर्स है, उसके स्पेसिफिक हेड्स दे दिए हैं और वाउचर डेट्स है जो सिर्फ करंट ईयर में यूज हुआ है। सो मैं ये भी चेक कर सकती हूँ। अगर मुझे ये चेक नहीं करना है, सो नॉट यूज इन करंट ईयर। कुछ कुछ ऐसे हैं जो नॉट यूजिंग करंट ईयर, जैसे क्लोजिंग बैलेंस देखना है, मेरे को जैसे चाहिए मैं कॉन्फ़िगर से और मेरा सेट कर सकती हूँ लेजर। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक में भी मुझे सारे एक्सेप्शन रिपोर्ट मिलेंगे। नेगेटिव स्टॉक में भी अगर मुझे डेली नेगेटिव स्टॉक देखना है तो डेली नेगेटिव स्टॉक आई कैन गो एंड वाउच इट फ्रॉम योर नॉट यूज ड्यूरिंग द करंट ईयर। ये सारे स्टॉक आइटम्स को विच आई डिड नॉट यूज इन करंट ईयर, used only in current year, सारे स्टॉक आइटम्स हैं which I use only in this current year। अगर मुझे इसमें से कोई इशू लग रहा है, सपोज दिस गिफ्ट वाउचर, आई कैन डू दिस, शो दिस गिफ्ट वाउचर का लेजर फ्रॉम हियर। तो मुझे पूरा इसका मूवमेंट एनालिसिस भी पता चल जाएगा, कहाँ से इनवर्ड आया है, कैसे आउटवर्ड गया, क्लोजिंग में कैसे गया। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने ये पार्टी का कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑलरेडी नोट करके रखा है, तो ये भी मुझे वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगा। सो स्पेसिफिकली मैं स्टॉक का भी यहाँ पे भी मैं कॉन्फ़िगर कर सकती हूँ। मुझे क्या देखना है, एक्सेप्शन रिपोर्ट देखना है, ड्यूरिंग द ईयर यूज दिख रहा है, नॉट अवेलेबल इन करंट ईयर देखना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नो चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर देखना है। ये सारे आइटम्स है जिसमें देयर इज नो चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। जो ओपनिंग स्टॉक था वही क्लोजिंग स्टॉक है। अब सपोज आरसीसी का स्टॉक आइटम इज पेरिशेबल आइटम, तो ये मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर की ओपनिंग से अभी तक कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है। सो ये सीधा सीधा मुझे रिपोर्ट मिल जाएगा। मैं रिपोर्ट को सीधा एक्सपोर्ट करके रख सकती हूँ, मैं यहाँ पे उसको सेव करके भी रख सकती हूँ। इसमें भी मुझे डेली नेगेटिव सारा दिखेगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपको दिख जाएंगे पूरे कितने हेड्स है। यहाँ से आप कॉन्फ़िगर में चेंज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो यूजफुल। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टॉक वेरिफिकेशन इज ऑल्सो यूजफुल इफ यू वांट टू सी दिस आइटम वाइज स्टॉक वेरिफिकेशन। तो आपको ये पूरा आइटम वाइज स्टॉक वेरिफिकेशन मिल जाएगा, एक एक आइटम कौन से हेड में, नॉट दिस इज नेगेटिव स्टॉक, नॉट यूज्ड इन करंट ईयर, यूज्ड इन करंट ईयर, सारा आपको डिटेल इसी में से मिल जाएगा। So if anything fishy is there in the stock, we can detect it really very easily. अभी apart from this, अगर हम stock summary में भी जाते हैं, stock summary में हम लोग सीधा सीधा एजिंग भी देख सकते हैं। This is item wise stock summary। वैल्यूएशन देखना है मुझे, वैल्यूएशन फीफो बेसिस पे देखना है, तो मुझे फीफो बेसिस पे वैल्यूएशन दिखेगा। मुझे चाहिए, मुझे प्रॉफिट देखना है कि आउटवर्ड कितने में हुआ था, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है, क्या रेशियो है, सब मैं यहाँ से देख सकती हूँ। आई शोड यू कि कैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फर्दर कर सकते हैं, चेंज इसमें स्टॉक समरी में भी कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आई विल टेल यू। मुझे स्टॉक का एजिंग देखना है, कितने टाइम से स्टॉक इधर ही होल्ड किया हुआ है, मुझे देखना है। ओपनिंग स्टॉक भी देखना है, इनवर्ड देखना है, आउटवर्ड देखना है। अभी इनको पूरा रिपोर्ट मिल गया मेरा स्टॉक का। अब
save this view also for future reference. यहाँ पे भी I can see सीधा नेगेटिव स्टॉक्स मुझे दिख रहा है, तो ये नेगेटिव स्टॉक सारे फिल्टर हो गए यहाँ पे. मुझे ग्रुप वाइज स्टॉक देखना है कि मुझे इंडिविजुअल स्टॉक देखना है, वो भी ऑप्शन है. मुझे प्रॉफिट रेशियोज नहीं देखना है. मुझे वैल्यूएशन वापस चेंज करके डिफॉल्ट वैल्यूएशन लाना है, तो वैल्यूएशन फिर से चेंज हो जाएगा. तो ये सब एक्टिविटी जो हम यूजुअली ऑडिट रिपोर्ट में मैन्युअली करते थे, वो हमको सब कुछ टैली प्राइम से अभी डायरेक्टली मिल सकता है. इफ आई वांट टू ऐड सम न्यू कॉलम हियर, मुझे लास्ट ईयर से कंपैरिजन करना है, सपोज अप्रैल 19 मार्च 20 से मुझे कंपैरिजन करना है, सो आई कैन डू दैट आल्सो. मुझे सारे कंपैरिजंस मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड अगर आपका डेटा स्प्लिट नहीं किया हुआ है. एक और फंक्शन है यहाँ पे स्टॉक समरी में, चेंज व्यू करती हूँ, मुझे एजिंग एनालिसिस देखना है. अब मैंने एजिंग एनालिसिस सेट करके रखा है, सपोज मुझे 0 to 180 डेज देखना है, 180 to 360 डेज देखना है, अबाउट 360 डेज देखना है. सो ये सारा एजिंग आ गया. नेगेटिव स्टॉक स्पेसिफिकली हमको अलग दिख रहा है. स्टॉक का एजिंग, सपोज हमके कोई क्लाइंट ऐसा है सेट के उसका स्टॉक का इतना एजिंग है ही नहीं, उसका स्टॉक इतना अलाइव रह ही नहीं सकता है, सो हम लोग यहीं से स्पेसिफिकली शो कर सकते हैं आपका स्टॉक का इतना लाइफ ही नहीं है, तो अभी तक आपका स्टॉक ही कैसे पड़ा है. बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन जाके करेंगे, यूजुअली टेक MRL फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन. सो यहाँ से अगर हमने एंट्री में कुछ इशू किया है तो हम लोग स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर सकते हैं. So this is pertaining to stock. Stock aging analysis, you can change any day, any aging as per your convenience. Further कोई भी वे में configurations आप stock report में भी कर सकते हैं. मुझे suppose stock report में amount decreasing view चाहिए, I'm just concerned with higher amount, तो वो भी फिल्टर हो सकता है. और मैं ये सेव भी करके रख सकती हूँ मेरे फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि जब मैं स्टॉक समरी ओपन करूँ मुझे यही व्यू में देखना है, तो मैं वो सेव भी करके रख सकती हूँ. तो स्टॉक समरी और स्टॉक रिपोर्टिंग एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन के थ्रू इट इज वेरी इजी नाउ. And if you want to compare some company along with this company, अगर सेम इंडस्ट्री की कंपनी आपको कंपेयर करनी है, आप वो भी यहाँ से कंपेयर कर सकते हो. Very nice feature. Stock aging. Apart from the stock aging, analytical procedures, you can use this. ये पहले ERP9 में भी था. Analytical procedures. Suppose मुझे group analytical procedures check करना है, मुझे मेरे बैंक अकाउंट्स वेरिफिकेशंस करना है. ये देखो ग्रुप कंपैरिजन आ गया. बैंक अकाउंट दोनों पीरियड का 2021 1920 दो बैंक अकाउंट्स थे मेरे. दो बैंक अकाउंट्स में से हायर 98% ट्रांजैक्शन IDBI बैंक में ही है. तो मैंने सैम्पलिंग कर लिया कि मुझे IDBI बैंक पे ज्यादा फोकस करना है, SBI बैंक्स में कम ट्रांजैक्शन है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मुझे सेल परचेज किसी का भी एनालिटिकल व्यू चाहिए, सपोज मुझे सेल्स चेक करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ मुझे सेल कंपैरिजन करना है. अब यहाँ पे कोई कंपैरिजन आया नहीं है, क्यों नहीं आया मुझे चेक करना है. आई डायरेक्टली गो टू ऑप्शन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देखूंगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल्स दिख रहा है बट कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपार्ट फ्रॉम परचेजेस नहीं है, इसलिए मुझे वो कंपैरिजन नहीं दिख रहा है. तो आपको कोई भी दो हेड्स का कंपैरिजन या दो ग्रुप्स का कंपैरिजन देखना, यू कैन सिंपली डू इट विद दिस ऑप्शन, एनालिटिकल ऑप्शन. कोई भी आप हेड सिलेक्ट कर सकते हैं. यू वांट टू डू इट फॉर ग्रुप एंड लेजर, you can do it for group and ledger. I want to see suppose closing stock in trade, let's see, I can use this comparison. मेरा sales से stock in trade में कितना variance है, last year कितना था, इस साल कितना variance है. If I want to go to the specific ledger and see, I can overview it from here. वेरिएंस है, स्पेसिफिकली बहुत वेरिएंस है, तो ये मुझे वेरिएंस के परसेंट दिखेंगे. So this analytical procedures are also very useful features while auditing.
मैंने आपको बैंक टू बैंक बताया, सपोज मैं सेल टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कर सकती हूँ, सेल टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कर सकती हूँ, सेल टू स्टॉक भी कर सकती हूँ. Both the group or ledger we can compare through this option. Apart from this, show high and lowest value in the ledger. Suppose I am going to any ledger. मुझे याद आया मुझे कोई specific ledger में जाना. I went to this go to option ledger voucher. Suppose I want to go to this ABCD option. Okay. अब मुझे देखना है कि पूरे ईयर के ट्रांजेक्शन में आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आई जस्ट वांट टू सी इसका हाईएस्ट और लोएस्ट ट्रांजेक्शन क्या है. मंथली व्यू में जाऊंगी. मंथली व्यू में जाके आई कॉन्फ़िगर करूंगी तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखेगा शो हाईएस्ट एंड लोएस्ट बैलेंस. आई विल डू इट यस. अब आई एम नॉट कंसर्न विद ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विद दिस पार्टी. मुझे कौन से डेट पे हाईएस्ट ट्रांजेक्शन हुआ है, कौन से डेट पे लोएस्ट ट्रांजेक्शन हुआ है, यहाँ पे सब बाइफरकेट हो गया है. तो स्पेसिफिकली मेरे को अगर कोई लेजर सैंपल किया है चेकिंग के लिए तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू बाइफरकेट करके रख सकती हूँ. आई कैन सेव दिस व्यू फॉर फ्यूचर रेफरेंस. तो जब मैं नेक्स्ट टाइम ये लेजर ओपन करूंगी आई एम जस्ट कंसर्न विद द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फीचर. तो मैं ये लेजर में मैं कोई भी लेजर नहीं कर सकती, तो दूसरे लेजर में भी करना है. आई गो टू दिस मंथली ऑप्शन. आई कॉन्फ़िगर अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट एंड लोएस्ट फीचर. तो यहाँ पे मुझे हाईएस्ट एंड लोएस्ट अकॉर्डिंग टू डेट सब कुछ मिल गया. सो आई एम जस्ट कंसर्न विद दिस. मुझे सारे ट्रांजेक्शन देखने में इंटरेस्ट नहीं है. सो दिस इज दी ऑल्सो नाइस फीचर गिवन टू अस. अभी यूजुअली हम लोग कैश ट्रांजेक्शंस चेक करते हैं. मैं सीधा गो टू फीचर में ही करूँगा. आप देखेंगे मैं सीधा गेटवे पे जा ही नहीं, मैं सब यहीं से ऑपरेट कर रही हूँ. गो टू फीचर में अब मुझे चेक करना है और कैश ट्रांजेक्शन अबव 10,000 रुपीज. तो मैंने सॉर्टिंग कर दिया हाईएस्ट अमाउंट से. अब ये मैं सेव करके रख सकती हूँ. जब भी मैं कैश बुक ओपन करूंगी आई सेव दिस ऑप्शन. तो ये ऑप्शन डिफॉल्ट सेव करके रखना है फॉर दिस कंपनी फॉर दिस पीरियड. ये मैंने सेव करके रखा. सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई ओपन दिस कैश बुक मुझे छोटे छोटे कैश ट्रांजेक्शन से कोई मतलब ही नहीं. मुझे देखना है कोई कैश एक्सपेंसेस नहीं हुए ना. यहाँ पे सारी कॉन्ट्रा एंट्रीज है. सो हाईएस्ट फिगर अपने आप फिल्टर हो जाएगा और आई कैन सेव दिस फॉर माय फ्यूचर रेफरेंस. मुझे वापस पूरा कॉन्फ़िगर F12 करके करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो दिस ऑप्शन इज वेरी यूजफुल व्हाइल ऑडिटिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी काफी चेंजेस हुए हैं. चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैज बीन रीअरेंज्ड एज पर आवर शेड्यूल 3. प्रॉपर हेड बाइफरकेट किए हुए हैं. हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे. यू विल बी एबल टू सी द चेंजेस. Here I can go to gateway of Tally. I can also go. ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स मुझे सारे लेजर्स मिल गए इसमें डिटेल में. अगर मुझे इसमें ऐसे नहीं व्यू चाहिए आई गो टू दिस लेजर व्यू. लेजर व्यू में कौन सा लेजर कौन से हेड के अंडर है, कौन सा स्टेट है, जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर नहीं है, मुझे सब यहाँ से पता चल जाएगा. अब वाइल ऑडिटिंग मुझे समझ में आ रहा है कि ये पर्सन है जिसका जीएसटी नंबर गलत डाला हुआ है. सो आई कैन रिपोर्ट दिस टू माय क्लाइंट और आई कैन पुट दिस इन माय क्वेरी लिस्ट. आई कैन चेक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन फ्रॉम हियर. अगर इसमें भी स्पेसिफिकली मुझे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स देखने हैं सो यहाँ से भी मैं एक्सेप्शन रिपोर्ट्स जाके देख सकती हूँ. किसी के जीएसटी अपडेट करने सपोज जीएसटी नंबर इज नॉट करेक्ट. I can update the GST number from here. Show used unused transactions during the year. I want to see this. These all ledgers were not used during the year. So I'll go and check के last year क्या इसका use था, इस बार क्यों use नहीं हुआ. I can definitely see exception reports from here. I want to see only used during the current year. So these are the transactions which were used during the current year. So I can filter all the vouchers from here itself. From this chart of accounts. Apart from this, अगर मुझे स्टॉक के ग्रुप स्टॉक कैटेगरीज कुछ भी देखना है मैं यहाँ से ओपन करके देख सकती हूँ. करेंसी सपोज कोई स्पेसिफिक करेंसीज में ड्यूअल अकाउंटिंग हो रही है वो भी मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ जाके. So this option is also very useful option. Apart from this exception report आपको हर एक लेजर में जाके exception report दिखेंगे used during the year, not used during the year. That is also really useful to us.
एक्सेप्शन रिपोर्ट एज आई शोड यू, पैन वैलिडेशन, किसी के पैन नंबर गलत है, आप सब यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हो, आपको एक एक लेजर में जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, स्पेसिफिकली आई शोड यू वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में भी आप जाके देख सकते हो ट्रांजेक्शन स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, नॉट यूज ड्यूरिंग द ईयर, यूज ड्यूरिंग द ईयर, काफी आपको हेड्स मिलेंगे इसमें, नॉट अवेलेबल इन करंट ईयर, नॉट यूज्ड इन करंट ईयर, फिर balances of last year used in current year, only balances no transactions, जैसे भी आपको लेजर फिल्टर करने हैं, वाउचर्स फिल्टर करने हैं, आप इसमें से फिल्टर कर सकते हो, देयर आर लॉट मेनी ऑप्शंस है। सो आपको लगता है कि आपकी एसएससी के कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स में हर साल गड़बड़ होती है, तो आप सीधा वही ट्रांजेक्शन यहाँ से फिल्टर करके वही लेजर्स चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे भी आपको स्पेसिफिक ऑप्शंस दिए हैं, F3 F4, आई विल शो यू। आई शोड यू कि आपको कैसे लेजर्स देखने हैं। अब यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर करके मुझे स्टेट का नाम नहीं देखना है, कैसे दिखता है। अगर मुझे सारा डिटेल में देखना है, you can see detail here. I want to see other master or change any other master, everything आप यही लेजर में जाके कर सकते हो। Apart from this ledger view, I already showed you कि हम लोग के क्लाइंट्स के कितने लेजर्स है टोटल, कौन से हेड में ओपन किया हुआ, इसके स्टेटस क्या, यूज्ड है ड्यूरिंग द ईयर, नॉट यूज्ड है, डेट और क्लोजिंग बैलेंस के साथ हम लोग को पूरा रिपोर्टिंग यहीं से मिल जाएगा, एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि उसने टैली में कौन से एंट्रीज कौन से टाइप की पास की हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस दिए, ये भी मैंने आपको शो किया था। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन एक्सेप्शनल आपको चेक करना है तो आप एक्सेप्शनल चेक करो, नॉट यूज ड्यूरिंग द करंट ईयर, यूज ड्यूरिंग द करंट ईयर, आप सब ऑप्शंस यहाँ से यूज कर सकते हो। वेरिफिकेशन बैलेंस रिपोर्ट, अब स्पेसिफिकली आप कोई भी लेजर या कोई भी वाउचर ओपन करेंगे तो पहले हम लोग को चेक करना पड़ता था कि इसमें से नेगेटिव लेजर कौन से हैं या तो एक्सेप्शन रिपोर्ट्स क्या है। अगर हम लोग डेटा एनालिसिस में सीधा वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस ऑप्शन में जाते हैं, आई विल शो यू प्रैक्टिकली, going to analysis and verification, data analysis, verification of balances। यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली रेड में हाईलाइट कर दिया ऑलरेडी कि यहाँ पे कौन से ऐसे लेजर्स हैं जो ठीक नहीं लग रहे। अब ये सस्पेंस एंट्री अभी तक है, सो दे आर हाईलाइटिंग इट स्पेसिफिकली। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसने मुझे स्पेसिफिकली शो कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस बैलेंस वेरिएंसेस क्या है, तो लास्ट ईयर से अभी में बैलेंस वेरिएंसेस आपको ये परसेंट के साथ मिल गए। नाउ आई एम नॉट कंसर्न विद छोटा मोटा वेरिएंस, आई एम जस्ट कंसर्न विद कौन से पार्टीज में बहुत ज्यादा वेरिएंस है, जैसे इसमें 504% वेरिएंस है, तो मैं सिर्फ वो ही चेक करूंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर रेड में आपको कुछ स्पेसिफिकली दिख रहा है तो आपको उसका ट्रांजेक्शन जाके चेक कर लीजिए कि क्यों ये दिख रहा है। आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो स्टेटस दैट यू हैव वेरीफाइड दिस और नॉट। अगर आपको ग्रुप वाइज देखना है तो आप ग्रुप वाइज देख सकते हो, लेजर वाइज देखना है तो लेजर वाइज देख सकते हो। सपोज ये कन्वेंस में आई एम नॉट श्योर कि कन्वेंस में क्या एंट्री पास की हुई है, गो एंड चेक द लेजर कन्वेंस में क्या एंट्री पास की हुई है, यहीं से सब में जाके देख सकते हो। स्पेसिफिकली रेड शो करेगा ही अगर बहुत ज्यादा वेरिएंसेस है या तो कुछ तो भी एंट्री में प्रॉब्लम है, तो यहीं से आपको शो कर देगा। अगर आपने वेरीफाइड कर दिया है, यू पुट योर कमेंट यू आर वेरीफाइड। अगर होल्ड में रखा है सो यू कैन पुट द कमेंट दैट इट इज केप्ट ऑन होल्ड। अब अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो इफ आई एम सीइंग द लेजर, मुझे यहाँ पे कोई भी पार्टी के लेजर दिख जाएंगे, लेजर भी मैंने वेरीफाई किया है क्या किया है, आई कैन डायरेक्टली सी फ्रॉम हियर। परचेज अकाउंट, ये भी मुझे बाइफर्केशन मिल गया कि परचेज अकाउंट क्या है। अगर मैं इसमें सैम्पलिंग करके रखा है तो मुझे यहाँ पे सैम्पल्ड भी शो होगा कि आपने कौन सा सैम्पलिंग करके रखा है। I can compare any company with this. I can check the variances from last year.
I can directly see the group wise or ledger wise summary of this. This is also a great feature given by this. इसमें भी आप बिल टू बिल एजिंग भी डायरेक्टली देख सकते हो. सपोज इफ आई एम गोइंग टू सम लेजर, लेजर, अगर मुझे बिल वाइज समरी देखनी है तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली ओवरव्यू एजिंग मिल जाएगा. मुझे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जाके देखने की जरूरत नहीं है. फर्दर मुझे यहीं से क्लासिफिकेशन चाहिए एजिंग का. सो आई सेट कि मुझे 0 to 90 डेज, मुझे 0 to 180 डेज, 360 डेज to 720 डेज का एजिंग चाहिए. तो यहाँ पे सब बाइफिकेशन हो गया. ये पार्टी का सारा बाइफिकेशन मिल जाएगा. अब इसमें भी मैं अगर जाके एक्सेप्शन रिपोर्ट्स देखती हूँ तो देखो ये एक्सेप्शन रिपोर्ट में एंट्री डिटेक्ट हुई. व्हाट डज दिस मीन? मतलब ये एंट्री का सीधा मैंने ऑन अकाउंट एंट्री किया हुआ है, अगेंस्ट रेफरेंस नहीं किया हुआ है. सो आई नीड टू आस्क दिस ट्रांजैक्शन टू माय क्लाइंट कि ऑन अकाउंट एंट्री क्यों किया है. क्योंकि अगर ये ऑन अकाउंट एंट्री किया है, बिल के रेफरेंस में एंट्री नहीं किया है, तो इसका एजिंग रॉन्ग डिटेक्ट होगा. को यूजुअली 0 to 90 डेज, 90 to 180 डेज एंड 180 डेज से अबव एजिंग चाहिए रहता है ऑडिट रिपोर्ट में शो करने के लिए. तो मुझे मिल जाएगा. और अगर मैं स्पेसिफिकली एजिंग का एक्सेप्शन, दिस एक्सेप्शन रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी लेजर. अगर आपका यूजुअल लेजर में कुछ भी ऊपर नीचे रहेगा तो आपको ये एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में दिख जाएगा. अब मुझे इतने लेजर में मुझे नहीं समझ में आता था कि कौन सा ऑन अकाउंट एंट्री किया हुआ है. यहाँ पे उसने मुझे स्पेसिफिकली फिल्टर करके दे दिया कि ये एंट्री ऑन अकाउंट किया हुआ. सो आई कैन पुट दिस क्वेरी टू माय क्लाइंट कि ऑन अकाउंट एंट्री हटा के पुट अगेंस्ट द बिल रेफरेंस का एंट्री. सो आई गेट प्रॉपर एजिंग ऑफ दिस लेजर. Also important feature, suppose I want another party, and always I can save the changes I am making in any ledger while checking. If I want to see this in columnar form, I can always save this view for my future references. यहाँ पे भी मुझे exceptional reporting देखना है. यहाँ पे भी I can see केस में कुछ ऑन अकाउंट एंट्री किया हुआ है, एंट्री है बट कुछ तो भी गड़बड़ है, तो ये सारा एक्सेप्शन रिपोर्ट में अपने आप आ जाएगा. सो आई डोंट नीड टू गो एंड चेक एक एक एंट्री. मैं यहाँ से सीधा मेरा ऑडिटिंग के क्वेरी सीधे बाइफरकेट कर सकती हूँ और मैं सेव भी करके रख सकती हूँ. तो अगर मेरे बाद और कोई फिल्टर कर रहा है तो इसको सीधा ये सेव्ड व्यू ही मिलेगा. सो अपार्ट फ्रॉम दिस लेजर वेरिफिकेशन पार्ट, एजिंग हम लोग पर्टिकुलर लेजर की देख सकते हैं. हम लोग कोई भी स्टॉक का मूवमेंट एनालिसिस भी देख सकते हैं. आई विल शो यू. अगर स्पेसिफिकली मुझे मूवमेंट एनालिसिस देखना था वो भी पर्टिकुलर पार्टी का. सो आई एम गोइंग टू दिस गो ऑप्शन, लेजर फंक्शन, सी दिस EBC पर्सन. मैं ये पार्टी से कुछ भी परचेज नहीं कर रही हूँ, ये पार्टी को सिर्फ सेल कर रही हूँ. तो मैंने ड्यूरिंग माय पीरियड मैंने उसको कितना स्टॉक सेल किया है, कितने में किया है, मुझे सब यहाँ पे मिल जाएगा. सपोज मेरी यहाँ पे मैं परचेज भी करती, ये पार्टी से सेल भी करती, तो मुझे इसका पूरा एनालिसिस मिल जाता कि इतना स्टॉक मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया था, इतना स्टॉक मैंने ड्यूरिंग द ईयर सेल किया था. मुझे दूसरे कोई पार्टी का भी सेम में चेक करना है. डायरेक्टली आई कैन गो टू लेजर एंड आई कैन चेक दिस विद एनी पार्टी. अभी ये पार्टी सिर्फ मैं परचेज करती हूँ, जिसको कुछ सेल नहीं करती हूँ, तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर इससे कितना परचेज किया, क्या क्वांटिटी परचेज किया, मुझे यहाँ पे सब कुछ इन हैंड मिल जाएगा. So if I'm filtering any vouchers or party through my sampling method, तो मैं ये यहाँ से ledger से जाके सब कुछ चेक कर सकती हूँ. Suppose audit fees तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं. audit fees का एंट्री नहीं है. So this is the way मैं सीधा ऑडिटिंग का मेरा पूरा डेटा यहीं से चेक कर सकती हूँ. मुझे एक एक लेजर में जाके जरूरत नहीं है. हर एक लेजर में आप देखेंगे, हर एक लेजर में यू हैव ऑप्शन टू चेक द एक्सेप्शनल रिपोर्ट. तो आपको वहीं से सब कुछ मिल जाएगा. फिर है वाउचर रजिस्टर विद वेरिफिकेशन स्टेटस.
दिस आई हैव ऑलरेडी शोड यू. वाउचर वेरिफिकेशन सीधा हम लोग वहीं पे शो करेगा कौन सा हम लोग ने वेरीफाई किया है, कौन सा वेरीफाइड नहीं किया है. लास्ट ईयर से कंपेयर कर सकते हैं. एवरीथिंग वाउचर को हम लोग यहीं से सैम्पलिंग कर सकते हैं. One more feature which I found useful in this is ratio analysis. Usually हम लोग ratios ही check करते हैं कि last year का ratio क्या था, ये year का ratio क्या है. तो सीधा ratio analysis का tab दिया है. मुझे vertical view चाहिए, मैंने vertical view ले लिया. सपोज मुझे ratios लास्ट ईयर से कंपेयर करना है, तो अप्रैल 19 मार्च 20 का मैंने कॉलम ऐड कर दिया यहाँ पे. सो मैं सिर्फ उतना ही चेक करूंगी जहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है. जैसे ये टर्नओवर लास्ट ईयर 106 डेज था, 77 डेज था, इस बार 106 डेज हो गया. तो मैं यहाँ से भी जाके सीधा सैम्पलिंग कर सकती हूँ कि कहाँ पे है जहाँ पे बहुत वेरिएंस है. यहाँ पे भी काफी वेरिएंस है, तो मैं सीधा एंटर करके इसके अंदर देख सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसमें. करंट रेशियो चेंज हो गया है, डे वाइज चेंज हो गया है, तो कौन सा डेज कितने कौन से पार्टी में चेंज हुआ है वो भी मुझे यहाँ पे सेपरेटली सैंपल करके मिल जाएगा. मतलब any green area or any doubtful area can be overviewed through this ratio analysis for thing also. अब यहाँ पे मुझे कोई कॉलम ऐड करना है, डिलीट करना है, मैं कर सकती हूँ. मुझे कोई स्पेसिफिकली कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो भी मैं कर सकती हूँ. मैं इसको सेव भी करके रख सकती हूँ. नेक्स्ट टाइम whenever I open this ratio analysis portal, I'll see this comparison directly. लास्ट ईयर और ये ईयर का कंपैरिजन मैं डायरेक्टली यहीं से चेक कर सकती हूँ. मेरे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज क्या है, मेरा नेट प्रॉफिट रेशियोज क्या है. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो मैं सीधा एंटर करूँगी तो मुझे सारे मेरा पीएनएल अकाउंट ओपन करके मुझे सब कुछ यहीं पे इन हैंड मिल जाएगा. सो दिस फीचर इज आल्सो यूजफुल व्हाइल ऑडिटिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग को काफी इंसाइटफुल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स यहाँ से मिलते हैं डायरेक्टली. बैलेंस शीट, पीएनएल, शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट मिलेगा. ट्रायल बैलेंसेस. Now suppose trial balances, maybe I have a habit of seeing the trial balances. I can directly go through from there. Trial balance. तो मुझे trial balance मैंने ये सेव करके रखा है. मुझे ओपनिंग, क्लोजिंग और ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शंस देखने का हैबिट है. अगर मुझे ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं देखना है तो मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ. तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया. अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लास्ट ईयर से कंपैरिजन चाहिए. ये लास्ट ईयर से कंपैरिजन आ गया. मुझे और फिल्टरिंग चाहिए. मुझे ओपनिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन सब कुछ देखना है. ये लास्ट ईयर से पूरा आपको कंपैरिजन यहाँ पे मिल गया. Ma'am, can we start taking the questions now? Okay, no problem. So just give me 5 minutes to complete one more head, then we can move towards the question. Sure. Okay. All right. So ये ट्रायल बैलेंसेस का आपने डिफरेंस देखा. ट्रायल बैलेंसेस में भी वी कैन गो टू दिस एक्सेप्शन रिपोर्ट्स. यहाँ पे मुझे सारे नेगेटिव लेजर फिल्टर हो गए. लास्ट ईयर भी कुछ नेगेटिव लेजर्स थे, ये साल भी नेगेटिव लेजर्स है. तो आई कैन डायरेक्टली गो एंड सी द लेजर फ्रॉम हियर. So this is also an important feature for auditing. Apart from this, we can use pending documents. हम लोग को क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमको सारा समरी मिल जाएगा. हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस हम यहाँ से भी देख सकते हैं. हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ट्रांजेक्शंस पर लेजर हमको यहाँ से मिल जाएंगे. और कितना डिफरेंस और कितना वेरिएंसेस है ये भी वी कैन सी फ्रॉम हियर डायरेक्टली. फिक्स्ड एसेट का एनालिसिस भी, अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट ज्यादा है नहीं कोई. अब यूजुअली जिसके बहुत ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स रहते हैं हम लोग को सीधा लेस देन 180 डेज, मोर देन 180 डेज का बाइफरकेशन, एडिशन, डिलीशन सब यहीं से मिल जाएगा. So while making that FA schedule in ITR3 or in audit report, we can fetch directly details from here. And related party also, you can define the related party. Suppose you want to add some ledger here, you add some other ledger, तो आपको related party details भी पूरी audit report के लिए यहीं से मिल जाएगी. And GST का annual analysis भी आप यहीं से कर सकते हो. Obviously, while filing the return or while doing the tax audit, definitely we have to reconcile the GST portion and our sale as per P&L. तो पूरा आपको
डिटेल समरी आप इसी में से फेच कर सकते हो, कौन से अनसर्टेन ट्रांजैक्शन है, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है, you can filter everything from here only while auditing. So these were the some features of Tally which are used in our day-to-day audit work. And apart from this, these were some of the important amendments which I tried to take up in ITR as well as the audit report. So Sanjay sir, we can take up with the queries. Yes, ma'am. So actually, I just wanted to add few things. Okay, one is that most of the people are here chartered accountant. So one important thing which they can do is into Tally. Once the auditing is over, they can just simply select all the transactions, mark it as verified on one click. Okay, Yes. so post that, if they come back and they want to recheck if any transaction has been changed post auditing, it will come to their highlight immediately. Immediately, yes. Yes. Okay, so that is one thing. And second is that now most of the things are on the right hand side: exception reports, change view, save view, new column, auto column. So start using it is for the benefit of improving your practice. It will save a lot of your time while doing the data analysis. And these functions, trust me guys, are there in Tally for the last 12 years since the Tally RP9 was born. Okay, so the functions which CA Dhara Gandhi was showing, I'm sure most of you would have seen Tally audit feature, the audit and compliances. So these are part of Tally for the last 12 years, and I'm sure most of you are using it and still finding it difficult or something. So I'm sure this session would help you a lot to use that particular feature, and it will help you to do the data analysis to a great extent. So ma'am, can we take few questions here immediately? Sure, sure. Okay, so there is one question from Vipul. He is asking which section is applicable if turnover is less than 1 crore. Which section is applicable? If turnover is less than 1 crore, we can go through that presumptive income. अगर presumptive income नहीं होता है, then normally 44AB जो tax audit में applicable होता है, वही section में audit applicable हो जाएगा. Okay. I showed you this chart. If you want this, you can copy this chart also. This very important chart showing कि tax audit कब applicable है और tax audit कब applicable नहीं है. So अगर 1 CR के नीचे है, if you are going showing 8% or 6%, then presumptive 44AB में show कर सकते हैं. If नहीं, then 44AB के through ही route करना पड़ेगा. Right. ठीक है. So I think similar question was asked by Manoj also, Manoj Kumar. That turnover is more than 1 crore and less than 2 crore, profits more than 8%, books maintained. Is the tax audit compulsory? No, presumptive profit show करने का slab is up to 2 crores. So अगर आप 2 crores के अंदर की criteria में है तो anytime you can go to refer this 44AD for presumptive basis. And if you are showing cash income, so it should be 8% profit show कर सकते हो. अगर बैंक के थ्रू आपका turnover है तो आप 6% show कर सकते हो. Then in that case, tax audit is not applicable. Okay, and similar question is from Mr. Ramanathan. If losses are disallowed due to opting in new scheme, if next year we opt back of old scheme, can we again claim waived loss? No, we can't do this. अगर एक बार आपने न्यू स्कीम ऑप्ट कर लिया तो आपके पास नेक्स्ट ईयर ऑप्शन नहीं है वापस ओल्ड स्कीम में जाने के लिए. सो इसीलिए वी हैव टू सेंसिबली ऑप्ट दिस ऑप्शन. अगर न्यू स्कीम जाना है तो न्यू स्कीम में काफी ऐसे डिडक्शंस है चैप्टर 6 के विच इज नॉट अलाउड, या तो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस आर नॉट अलाउड, तो वही नेक्स्ट ईयर भी एप्लीकेबल हो जाएगा. आप स्कीम ऑप्ट आउट नहीं कर पाओगे. So, Mr. Vipul, can you unmute yourself and ask your question? You have raised your hand. Madam, as per section 44AB, if business turnover is less than 1 crore, then there is no provision for audit, even if profit is less than 8% or 6%. It is only applicable to profession.
this, you have to section 44AB, you have to read with section 44AB for presumptive. Yes, अगर yes. आप 1 CR, even if your turnover is 20 lakhs rupees and if you are not showing 6% or 8% profit, you are going below that, you have to do compulsory audit. Similarly, in case of loss, अगर आपका कितना भी turnover है तो compulsory आपको tax audit report file करना ही पड़ता है. So this is the I have one basic article. criteria. Yeah. I have one article regarding this matter. If you give me your mail ID or something else, then I will send you later on. Yes, definitely. I'll share my email ID with you. So अगर आपके पास कोई specific notification, you share it with me. मेरे पास है तो I'll share it with you. So you can note my email ID. So we be in touch regarding this. Okay. Thank you, Vipul sir. So there are a few more questions. I think I will also be able to answer them. This is from Kuthalingam. Can we get all reports in a single click? Can we have saved report all of these, which can be standard for all companies? Yes, Mr. Kuthalingam, you can save these reports and you can set a parameter that whatever you are saving should be applicable to all the companies. You can do that in Tally Prime. You cannot do that in Tally ERP9. Okay, the question is from Deepak. Mr. Deepak, release 3 would come sometime in the month of December. Okay, because that will also be part of the audit trail, which is getting compulsory from 1st April 2022. So it will also address to that. So next is, can we generate reports of non-payment of suppliers within 180 days for GST return purpose ITC reversal from Tally Prime? Ma'am, can you answer this? Can we generate report of non-payment of suppliers within 180 days for GST return purpose ITC reversal? बेसिकली ये रिपोर्ट हम लोग को लेजर वाइज ही मिलेगा, जो मैंने लेजर में आई थिंक मेरे प्रेजेंटेशन में भी शो किया है. लेजर में जाके वी कैन डेफिनेटली गो थ्रू दैट एजिंग पार्ट. हर एक लेजर में वो एजिंग का तो वो बटन दिया ही हुआ है, वी कैन यूज दैट. बट अगर आप लोग मतलब हम लोग जब ट्राई करते हैं कि पूरा आईटीसी रिवर्सल का 180 डेज का रिपोर्ट मिले, तो इट इज यहाँ से हम लोग वो फेच नहीं कर पाते. तो आई थिंक Tally will work out on this very soon, because ये issues मुझे बाकी सेमिनार में भी पूछे थे कि ऐसा कोई रिपोर्ट हम लोग को 180 डेज का मिलेगा जिससे हम आईटीसी रिवर्सल डिटेक्ट कर सकते. तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है. सो दैट वी हैव टू चेक मैन्युअली ओनली ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके. Fine. So next question is this audit features are available in Tally Prime Release 2.0, which is like this? Actually, these audit features are already available in Tally ERP, but more improvisation is available in Tally Prime, like, you know, looking at the change view or exception view, or you want to save these reports, you want to make it applicable for all the companies. So that features are available basically in Tally Prime 2.0. Yes, but just to make an announcement, you can use Tally ERP9 and Tally Prime together on the same serial number. On the same serial number, this is for everybody. You can use the same serial number for Tally Prime and Tally ERP9. You have any questions regarding that, you can always talk to our customer care people. They will help you understand that how you can run it. There is no, absolutely, it's hassle free. Tally ERP9 आप रन कर रहे हैं, Tally Prime में लाइसेंस एक्टिवेट करिए और Tally ERP9 को वापस से बंद करके खाली चालू कर लीजिए, लाइसेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके, प्रमोद जी का एक क्वेश्चन है. देयर आर वेरियस valuation methods. Pramod ji, I think what you have to do is on the stock summary, you just press Alt N auto column. उससे आपको ये सारे जो valuation methods हैं वो मिल जाएंगे on single screen. You can export that to Excel and you can do more analysis. अगर आपको Tally में ही analysis करना है, so you can just go through the report by pressing Alt N or auto column on the stock summary. Can we get PowerPoint file? That is actually up to Dhara ma'am. I think that is not to be shared, right?
Definitely, if somebody needs it, they can directly mail me on my email ID. I'll definitely share it with them. Yeah, so if anybody needs that PowerPoint presentation, they can get in touch with Dhara ma'am on the email ID being shown on the screen, and she will be very happy to reply with that. Okay, so with this, we have come to the end of our session. I'll just check if we have any questions in the chat. No, we do not have any questions in the chat. And I have taken all the questions here. So I hope everybody enjoyed this session. It was quite informative, very, very detailed. I myself learned a lot of things in Tally. On behalf of Tally Solutions, I myself, Sanjay Shukla, I take this opportunity to thank each and everyone who's present here, and especially Vipul sir and Deepak and Kuthalingam, Mr. Manoj, asking those wonderful questions, and none other than our wonderful speaker, CA Dhara ma'am, for giving us the time and enlightening us with such a wonderful presentation and knowledge on Tally and taxation. So with this, we conclude this session. Thank you so much. Thank you, Deepak ji. Thank you for being part of such a wonderful session. And we look forward to connect more and provide more information on Tally and the financial space. So have a wonderful evening. Thank you so much. Thank you. Thank you.